Hello everyone, this is Gautam Drolia. Welcome to Reliable Institute Kota, and here we are present today with the solution of March attempt of JEE Mains 2021. In this video, we are going to discuss solution of paper which was held on 17th March in morning session. So let's start our discussion of the questions. Here in the first question, the question reads as a triangular plate is shown, a force F, it is shown in figure also here, is acting on point P, and we have to find out torque of the force which is acting at point P with respect to point O and point Q. So this question belongs to rigid body dynamics and subtopic is torque. A very easy question. You must know how to calculate torque of a force. To calculate torque, we have a simple definition of a torque about point. Torque about point is defined as R vector cross F vector, where R vector is position vector of point of application of force with respect to the point about which we want to calculate the torque. So here in this question, when we want to write torque about point O, we will write R vector in first case as position vector of point P with respect to O, and that would be, you can see, you can break the component of 10 taking angle as 60 degree, it would be 5 I cap plus 5 root 3 j cap. We have been given the force vector is, you can see force vector is, we have 4 I cap and minus 3 j cap. So taking cross of these two, R1 cross F vector, we will get torque about point O as, if we will take cross of this, you will get it equal to minus 15 k cap and minus 20 root 3 k cap. Now this is torque about point O. We have to calculate torque about point Q also. Coming to point Q, I am writing the solution over here. About point Q, if I want to write torque of force F, again I will use torque about point Q as R2 vector cross F vector, where this R2 vector is actually position vector of this point P again with reference to Q. If we will write Q vector, we can use this vector QP vector as position vector. Writing that vector, we can write it as minus 5 I cap and this is plus 5 root 3 j cap. I have resolved this using this angle 60 degree, and again taking torque, again taking to write torque, again taking cross of it with force vector which is 3 I cap and minus 4 j cap. So solving this, you will get result as 15 k cap minus 20 root 3 k cap. So if we choose with the options given, our answer matches with option number 1, which is the correct answer. So this question was very easy, only formula based and simple calculation was involved. Let's move on to the next question. Question number 2, let's read the question. When two soap bubbles of radii A and B coalesce, the radius of curvature of common surface. So we have two bubbles and they are combining, they are coalescing, and we are having a different figure over here. It's given in the question B is more than A. So let us assume that this is a bigger bubble having radius B and we have a small bubble of radius A. Now when they combine, we have something arrangement like this. So here what we have is basically this radius is A, this radius is B, and here at interface radius we have to find out. Let us call it R, small r, let us call it small r. So we have to find out this small r. For calculation of this small r, we will write pressure, relation rather. Here pressure is P naught, I can assume, and here also, just a minute,
here also pressure is P naught, here pressure is P naught, and here also pressure is P naught. Now, if I want to write pressure inside this bubble, I can write it as pressure, here I can write it as P naught plus 4T upon A. 4T upon A is the pressure difference. We know this formula that if we cross two spherical surfaces, it is 2T upon R for each one. So, combining in bubble we have two spherical surfaces. So, pressure difference will be 4T upon A. Now, from here to here, if we move from here to here, pressure will decrease by amount. Whatever pressure is here, it will decrease by amount 4T by R. So, here I can write pressure as P naught plus 4T by A minus 4T by R. Now, from here to here if we move, again pressure will decrease and it will decrease by amount 4T by B, you can see. So, finally writing pressure over here, you can write it as P naught plus 4T by A minus 4T by R, and again a decrement of 4T by B, and this pressure is again equal to P naught. So, equating this to P naught, what you will get is 4T upon A minus 4T upon B equal to 4T upon R, solving which we will get R equal to AB upon B minus A, and it matches with option number 1. Now, this question was based on topic surface tension and it was a simple concept, so we can keep it in easy to moderate category. Let's move on to the next question. Question number 3. It reads as a polyatomic ideal gas has 24 vibrational modes. तो एक polyatomic gas है, इसके 24 vibrational modes है और हमें गामा की वैल्यू Cp upon Cv की वैल्यू पूछी गई है. देखो बच्चों, गामा को we can write as 1 plus 2 times degrees of freedom. So, अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू पता चल जाए तो गामा की वैल्यू अपने को मिल जाएगी. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए कैसे करें? तो वाइब्रेशनल मोड्स 24 है, ईच वाइब्रेशनल मोड्स के करस्पॉन्डिंग हम 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज्यूम करते हैं. तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपने पास 24 into 2 हो गए. अदर देन दिस व्हाट वी हैव polyatomic gas, so we are considering translational and rotational degree of freedom combined 6 degrees of freedom. 3 translational, 3 we have rotational degrees of freedom because it's a polyatomic, and 48 we have vibrational degrees of freedom. So total F comes out to be 6 plus 48, which is 54. Now putting this 54 value over here in F and solving it, we will get result as 1.03. Now it matches with option number 1. इस क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी. बस अपने को इतना पता होना चाहिए था कि ईच वाइब्रेशनल मोड्स के करस्पॉन्डिंग हम 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मान सकते हैं. ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे थोड़े बच्चे गलती कर सकते हैं. तो ओवरऑल ये क्वेश्चन बहुत आसान था. क्वेश्चन बिलोंगिंग टू KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. If an electron is moving in nth orbit of hydrogen atom, then its velocity Vn for nth orbit is given as. तो यहाँ पे बेसिकली अपने को nth orbit की velocity का proportionality पूछ रहा है n के साथ. अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो डायरेक्ट फॉर्मूला क्लासेस में पढ़ाते भी अपन बच्चों को कि किसी nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन लाइक एटम के किसी nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसकी जो स्पीड होती है उसको हम लिख सकते हैं नियरली 2.16 into 10 to the power 6 z upon n. आप देख सकते हैं जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वी कैन से v is proportional to 1 upon n. और अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो इट मैचेस विथ ऑप्शन नंबर 2. बहुत ही आसान क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का जिसमें सिर्फ किसी nth ऑर्बिट में आपको वेलोसिटी लिखना आना होना चाहिए था. I will keep it in easy category, question belonging to modern physics, Bohr model. So question number 5. An electron of mass m and photon, they both have same energy E. दोनों की energy E same है. उनके wavelengths का रेशियो निकालना है अपने को. इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ इस टू फोटोन का वेवलेंथ. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिफाइन करेंगे अपन, मैटर वेव डिफाइन करेंगे और इसको हम लिखेंगे
h अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम को हम एनर्जी के टर्म्स में 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए। सिमिलरली फोटोन की एनर्जी यूज करके उसका हम वेवलेंथ लिख सकते हैं। अगर हम फोटोन की एनर्जी देखें तो फोटोन की एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, और वो क्वेश्चन में E के बराबर ही दिया हुआ है। वी नीड लैम्डा, लैम्डा को मैं लिख सकता हूं लैम्डा ऑफ फोटोन इज hc अपॉन E। बच्चों अगर आप इसका रेशियो लें अपन, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ और फोटोन के वेवलेंथ का रेशियो मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, दिस इज h अपॉन रूट ओवर ऑफ 2me डिवाइडेड बाय hc अपॉन E। बच्चों इनका रेशियो आप लो तो यू विल गेट आंसर एज दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। अगेन इसमें बहुत ही सिंपल सी इंफॉर्मेशन और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, इसको मैं इजी कैटेगरी में रखना चाहूंगा। क्वेश्चन बिलोंग्स टू मॉडर्न फिजिक्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, टू आइडेंटिकल मेटल वायर्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज K1 एंड K2। तो अपने पास दो वायर्स हैं जिनकी कंडक्टिविटीज K1 K2 अपने को दी हुई है, उनको कनेक्ट किया हमने सीरीज में और उनकी इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी हमें निकालनी है, कॉम्बिनेशन की क्या इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी होगी। तो बेसिकली अपने पास दो वायर है, लेट अस से इसका लेंथ है L1 और आइडेंटिकल है तो L मान लेते हैं लेंथ, दूसरे का लेंथ भी L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में A एज्यूम कर लेता हूं, कंडक्टिविटी इसकी K1 है और इसकी K2 है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो बेसिकली मैं क्या बना रहा हूं, मैं एक ऐसा वायर जिसका लेंथ भी 12 हो, इस इफेक्टिव, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव जो वैल्यू K है वो K इफेक्टिव मान लेता हूं मैं, लेंथ 12, कंबाइंड लेंथ 12 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया अगेन A। बच्चों अगर हम K इफेक्टिव निकालना चाहते हैं तो हम यहां से क्या करेंगे, थर्मल रेसिस्टेंस लिखेंगे इस कॉम्बिनेशन का और उसको इस वायर के थर्मल रेसिस्टेंस से इक्वेट कर देंगे। तो इसका अगर थर्मल रेसिस्टेंस में लिखूं, इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस, क्योंकि वो सीरीज में है तो थर्मल रेसिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2, और R लिखने का जो तरीका होता है वो होता है लेंथ अपॉन AK, सो दिस वुड बी L अपॉन AK1 फॉर फर्स्ट वायर, L अपॉन AK2 for second wire, and this will be equal to 2L upon A into K effective. This is the value we need. अब यहाँ से L and A will get cancelled out. So what you will be left with is K effective will come out to be 2K1 K2 upon K1 plus K2 by solving these, which matches with option number 1. So बच्चों ये थर्मल फिजिक्स हीट ट्रांसफर वाले टॉपिक का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड, वी विल कीप इट इन इजी कैटेगरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ 0.2 mm। ओके, तो वर्नियर स्केल जिसमें अपने को जीरो एरर दे रखा है वो पॉजिटिव जीरो एरर है, ये अपने को दिया हुआ है यहाँ पे। If while taking a measurement, it was noted that zero of vernier scale lies between 8.5 and 8.6, तो जीरो वर्नियर का जीरो मेन स्केल के 8.5 और 8.6 के बीच लाई कर रहा है, इसका मतलब 8.5 हमारा मेन स्केल रीडिंग हो गया और वर्नियर कोइंसाइड इज 6, तो वर्नियर स्केल रीडिंग 6 हो गई अपने और मेन स्केल रीडिंग 8.5 हो गया। अपने को वर्नियर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। देखो बच्चों हम वर्नियर का जो रीडिंग लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, और अगर इसमें एरर होता है तो जीरो एरर इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस जीरो एरर। अपने को जीरो एरर क्वेश्चन में मेंशन्ड है, इनकी वैल्यूज पुट करें, मेन स्केल रीडिंग इज 8.5, वर्नियर स्केल रीडिंग इज 6 एंड लीस्ट काउंट इज 0.01 माइनस जीरो एरर। जीरो एरर क्वेश्चन में अपने को 0.2 mm दिया हुआ है, इसको आप चाहो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.2 इंटू 10 to the power -1 दैट इज 0.02। बच्चों इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट रिजल्ट एज दिस वन।
8.54। अगेन इसमें सिर्फ जीरो एरर के बारे में अपने को पता होना चाहिए था और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की वर्नियर से रीडिंग, हम वर्नियर स्केल से रीडिंग कैसे ली जाती है, तो इसको अपन इजी कैटेगरी में रखेंगे। चैप्टर इज एरर एंड मेजरमेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। AC current is given by I1 sin omega t plus I2 cos omega t। हॉट वायर एमीटर की रीडिंग क्या होगी, ये अपने से सवाल में पूछा है। बच्चों हॉट वायर रीडिंग अपने को आरएमएस वैल्यू देगी करंट का, तो इसकी हम आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो अपने पास जो करंट दिया हुआ है, दिस इज I1 sin ओमेगा t प्लस I2 cos ओमेगा t। अब इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर करूंगा, एवरेज लूंगा और रूट लूंगा। तो दिस इज आरएमएस वैल्यू आई स्क्वायर एवरेज एंड रूट। सो इसका पहले मैं स्क्वायर करता हूं। दिस इज I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एंड 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसका एवरेज भी लेना है अपने को एंड देन रूट। दिस इज आरएमएस वैल्यू और यही हमारा आंसर होगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी बच्चों, साइन I1 स्क्वायर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1/2 होगी। सो यहाँ पे अपने पास है I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस इसकी अगर एवरेज वैल्यू की बात करें तो ये होगा I2 स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 और ये साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा और इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दिस विल बी द आंसर एंड इट मैचेस विथ ऑप्शन नंबर 2। तो अगेन इट्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन RMS value of current, topic alternating currents, a very easy question. Let's move on to the next question. Question number 9. A modern Grand Prix racing car of mass is traveling on a flat track in a circular arc. तो एक कार है जो फ्लैट सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। उस ट्रैक का रेडियस अपने को r गिवन है और ये स्पीड v से मूव कर रही है कार, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। Coefficient of static friction between track and tire is mu s. Mu s coefficient of static friction है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। The magnitude of negative lift FL acting downwards on the car, तो कार पे जो नेगेटिव लिफ्ट एक्ट कर रहा होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो जो अगर कार की हम रफली एफबीडी देखें यहाँ पे तो अपने को समझ में आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसके सर्कुलर मोशन के लिए, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्राउंड से नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, एक mg और एक नेगेटिव लिफ्ट FL। वी हैव टू कैलकुलेट दिस FL। इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यूज कर रहा हूं यहाँ पे, mv स्क्वायर बाय r। दिस फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन की वैल्यू मैं यहाँ पे म्यू नॉर्मल लिख रहा हूं एंड म्यू इज म्यू एस गिवन इन द क्वेश्चन, mv स्क्वायर बाय r। अब यहाँ पे अपने को नॉर्मल की वैल्यू पुट करनी है। नॉर्मल को मैं लिख सकता हूँ mg प्लस FL, तो इस नॉर्मल को मैं रिप्लेस करूंगा mg प्लस FL से और यहां से हम FL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम FL की वैल्यू कैलकुलेट करें तो अपने को क्या मिलता है, आप चेक करें। FL की वैल्यू यू विल गेट एज mv स्क्वायर अपॉन म्यू s इंटू r माइनस mg, ये अपने को मिलेगी FL की वैल्यू एंड इट मैचेस विथ ऑप्शन नंबर 2। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। इसमें भी ऐसा कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं थी, सर्कुलर मोशन का बहुत सिंपल सा सवाल जिसमें हम लोग को सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया है हमने। सो वी विल कीप इट इन इजी कैटेगरी, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू सर्कुलर मोशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10. Now a car accelerates from rest at constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at constant rate beta to come to rest. तो कार पहले एक्सेलरेट कर रही है अल्फा रेट से, अल्फा इसका एक्सेलरेशन है, और वो बीटा से रिटार्ड कर रही है और फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है और इस पूरे जर्नी में जो टाइम लग रहा है वो t लग रहा है। अपने को डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है। तो इसको VT ग्राफ से अगर सॉल्व करें तो आसान पड़ेगा। लेट्स ड्रॉ VT ग्राफ। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले 0 से एक्सेलरेट होकर के किसी वेलोसिटी तक आ रहा है और यहाँ पे एक्सेलरेशन अल्फा है, मतलब
इसका टेन थीटा अल्फा के बराबर होगा। नाउ इट रिटार्ड्स एंड कम्स टू रेस्ट। यहाँ पे अल्फा है एक्सेलरेशन, यहाँ पे रिटार्डेशन बी है। जो टोटल टाइम इलैप्स हो रहा है दिस इज टी। देखो बच्चों, इसको मैं t1 मान लेता हूँ यहाँ तक के टाइम को, एक्सेलरेशन वाले टाइम को, और डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन को मैं t2 मान लेता हूँ। इस वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा बच्चों, इस वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो ही अपना डिस्प्लेसमेंट होगा इस पूरी जर्नी में, और वो अपना आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका एरिया अपने को निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस, बेस इज टाइम टी, इनटू हाइट। अब ये हाइट कैसे निकालें? तो इस हाइट h को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस h अपॉन t1 को मैं अल्फा लिख सकता हूं, है ना। h अपॉन t1 is tan of this angle and tan of this angle is slope of this line which is acceleration and it is equal to alpha. Similarly इस वाले ट्राइंगल में रिटार्डेशन बीटा है तो उसके मैग्नीट्यूड को मैं लिख सकता हूं h अपॉन t2। अब यहां से ऐड करें तो h अपॉन t1 प्लस h अपॉन t2 इज अल्फा प्लस बीटा, या इसको रेसिप्रोकल करके ऐड करें तो t1 प्लस t2 सीधा मिल जाएगा अपने को t के बराबर। तो rather than this you reciprocate it and then add, so you will get t2 plus t1 upon h will be equals to 1 upon alpha plus 1 upon beta। यहां से बच्चों इसको मैं t लिख सकता हूं, टोटल टाइम को, t1 plus t2 is total time which is equal to t। from here we will get h, यहां से अपने को h की वैल्यू मिल जाएगी, उसको यहां पे पुट करें h को। हमारा फाइनल आंसर अपने को t के टर्म्स में ही चाहिए, यहां से आप h को पुट करेंगे एंड यू विल गेट रिजल्ट एज दिस वन 3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर मोशन, अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड, सिंपल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत सिंपल सा मैनिपुलेशन था, और ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, वीटी ग्राफ का एरिया, ये इन्फॉर्मेशन अपने को पता होनी चाहिए थी। सो अगेन वी विल कीप इट इन इजी कैटेगरी, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू रेक्टिलिनियर मोशन काइनेमेटिक्स। Let's move on to the next question. Let's come to question number 11. A solenoid of 1000 turns per meter has core with relative permeability 500. Insulated windings of solenoid carry electric current of 5 ampere. Okay, तो current अपने को पता है windings में, number of turns per unit length भी पता है अपने को 1000 के बराबर है। उसके अंदर एक कोर है जिसकी permeability अपने को relative permeability 500 दी हुई है, और अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। हम पता है बच्चों, आइडियल सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई लिखते हैं अपन, अगर अंदर वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो। अगर कोई मीडियम आ जाए तो यू कैन राइट इट एज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर। ये म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम जो हमने इंसर्ट किया उसमें, एन आई। हमें यहाँ हर एक चीज की वैल्यू पता है, आई इज 5 एम्पियर, this n is number of turns per unit length which is 1000, mu naught वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, हालांकि वो वैल्यू में याद भी होती है, 4 pi 10 to the power minus 7 and mu r is 500. Now putting the values you will get it equal to pi Tesla, which matches with option number 1. A very easy calculation based question from magnetic field. Let's move on to the next question. क्वेश्चन नंबर 12, मास m हैंग्स ऑन मासलेस रॉड। तो अपने पास एक मासलेस रॉड है जिसमें एक मास हैंग कर रहा है, और वो l है इसकी लेंथ, कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रहा है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन्ड है, और इसकी स्पीड स्टेडी है, कांस्टेंट स्पीड से वो मास सर्कल में घूम रहा है। अपने को बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट और इस पॉइंट के अबाउट, इस दो पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम LA एंड LB के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पूछी गई है। देखो बच्चों, अगर मैं इसको रफली यहाँ पे ड्रॉ करूं और मैं इसको ऐसे सोचूं कि दिस सिनेरियो इज वेरी मच सिमिलर टू कॉनिकल पेंडुलम, और इसको मैं ऐसे देखूं कि यहाँ पे ये मास है फिलहाल, और इसकी वेलोसिटी आपकी तरफ है k डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम भी इधर ही होगा, mb मोमेंटम वेक्टर। इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं b पॉइंट के अबाउट मैं इसके एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, तो एंगुलर मोमेंटम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास अबाउट अ पॉइंट can be written as L vector is R cross P vector, जहां पे R पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट मास का विथ रेस्पेक्ट टू जिस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम, और P इज मोमेंटम वेक्टर। तो यहाँ पे अगर अपन R देखें तो दिस इज R वेक्टर, दिस इज P वेक्टर,
आर क्रॉस पी जो आएगा बच्चों वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इस तरफ, और जैसे जैसे ये बॉल मूव कर रहा होगा, ये मास मूव कर रहा होगा, आप देख सकते हैं कि ये मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी रोटेट कर रहा होगा। हालांकि इसका मैग्नीट्यूड हर बार सेम आएगा, क्योंकि आप देखो आर और पी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दिस इज आर वेक्टर, दिस इज पी वेक्टर, सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसका मैग्नीट्यूड एम वी आर आएगा हर बार, पर इसका जो डायरेक्शन है इस पॉइंट के अबाउट जब देख रहे हैं तो ये वेक्टर रोटेट कर रहा होगा। जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तब ये ऐसा हो जाएगा, जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तब ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये रोटेट कर रहा होगा ये वेक्टर भी। तो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है बी के अबाउट, पर मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है। बट अगर हम इस पॉइंट के अबाउट देखें एंगुलर मोमेंटम, और इसी फॉर्मूले से आर क्रॉस पी से पार्टिकल यहाँ पर लेटेस्ट से, तो आर वेक्टर ये है, दिस इज आर वेक्टर, एंड पी वेक्टर अंदर की तरफ है। तो आप अगर आर क्रॉस पी करोगे राइट हैंड रूल से ये अपवर्ड आएगा, वर्टिकली अपवर्ड। पार्टिकल कहीं भी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, हर बार वो आर क्रॉस पी वर्टिकली अपवर्ड आएगा। तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी एम वी इंटू रेडियस ऑफ दिस जो सर्कल है एम वी आर, इसके बराबर अपने को मिलेगा। यहाँ पे जो आर था वो आर रेडियस नहीं था सर्कल का, वो इसका लेंथ था एल, क्योंकि यहाँ पे वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर रहेगा आर। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ भी कांस्टेंट है एम वी आर, पार्टिकल यहाँ रहे, हर बार वो आर वेक्टर आर के बराबर बनेगा। आर और मोमेंटम परपेंडिकुलर है, तो आर क्रॉस पी में वो साइन 91 बन गया। तो मोमेंटम इज एम वी एंड डिस्टेंस इज आर। डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अच्छी बात यह है जब हम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं। अब ऑप्शन वाइज अगर चेक करें तो ऑप्शन 4 जो है एल ए इज कॉन्स्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये करेक्ट बैठता है। एल बी जो है बच्चों वो डायरेक्शन में एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वेक्टर वाइज हम बोलेंगे कि वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, ऑल्दो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सो दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी डायनामिक्स टॉपिक, a very simple question based on simple concepts. We'll keep it in easy category. Let's move on to the next question. Question number 13. For what value of displacement the kinetic energy and potential energy of simple harmonic oscillation become equal? So SHM का क्वेश्चन है और इसे पूछ रहा है कि किस डिस्प्लेसमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। देखो बच्चों, कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा हो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी हम लिखना जानते हैं। जब वो किसी रैंडम पोजीशन पे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं इक्वेट करूं उस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी के, उस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, के ऑफ एसएचएम इज नथिंग एल्स बट एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन करें तो ये एम ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, हाफ वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और इसको सॉल्व करें तो यहाँ से x की वैल्यू अपने को प्लस माइनस a बाई रूट 2 मिल जाएगा। ऑप्शन वाइज अगर चेक करें तो इट मैचेस विद ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान सवाल, वेरी इजी कैलकुलेशन, वेरी इजी कंसेप्ट, वी विल पुट इट इन इजी कैटेगरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14. A Carnot engine working between 400 Kelvin and 800 Kelvin has work output of 1200 Joule per cycle. तो Carnot engine का टेम्परेचर T1 T2 अपने को दिया हुआ है, जिस दो टेम्परेचर के बीच वो ऑपरेट कर रहा है, और वर्क आउटपुट पर साइकिल अपने को क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अपने को फाइंड करना है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द इंजन पर साइकिल कितना हीट उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं। बच्चों इसको अगर ऐसे सोचे कि एफिशिएंसी जो होती है कार्नोट इंजन की वो अपने को आती है लिखना 1 माइनस T2 अपॉन T1, जहाँ पे T2 लोअर टेम्परेचर है और T1 जो है वो हायर टेम्परेचर है। तो यहाँ से अपन पहले एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लें, तो इसकी वैल्यूज पुट करें 400 और 800, तो ये 1/2 बनेगा एंड एफिशिएंसी भी 1/2 के इक्वल आ जाएगी। अब इसी एफिशिएंसी को मैं वर्क अपॉन हीट इंजेक्टेड के बराबर पुट कर लूँ। वर्क की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में मेंशन्ड है, वो है 1200, तो इसमें अगर इसको 1200 पुट कर लूँ 1200 जूल, तो Q की वैल्यू अपने को मिलेगी 2400 जूल, which is in option number 4. So ये KTG थर्मोडायनेमिक्स का बहुत आसान सा सवाल, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, अपने को बस इतना पता होना चाहिए था कि हम एफिशिएंसी कैसे लिखते हैं कार्नोट साइकिल की। तो वेरी इजी क्वेश्चन, we will put it in easy category. Let's move on to the next question. Question number 15. Thickness of center of plano convex lens is 3 mm, okay, and diameter is 6 centimeter. तो अपने पास एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका डायमीटर अपने को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये इसकी सेंटर पे थिकनेस है T, इसका इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर लेटर से यहाँ कहीं पे होगा, और ये रेडियस हो जाएगा कर्व्ड सरफेस का R।
देखो बच्चों, अपने को फोकल लेंथ निकालनी है उसकी। तो अगर मैं इस प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ देखूं तो इस वाले सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट है और इस वाले सरफेस का रेडियस लेट अस से r है। तो फोकल लेंथ को मैं लेंस मेकर फॉर्मूला से अगर देखूं तो म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 अपॉन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये वाला r तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पुट कर देता हूं, माइनस 1 अपॉन माइनस r। इसको अगर मैग्नीट्यूड वाइज मैं r को मैग्नीट्यूड मान रहा हूं उसका, तो मैं कोऑर्डिनेट पुट करूंगा यहाँ पे रेडियस का, तो इसका रेडियस नेगेटिव पुट करूंगा यहाँ पे। यहां से f की जो वैल्यू आती है बच्चों वो आता है r अपॉन म्यू ऑफ लेंस माइनस 1। ये अपने को मिलेगा वैल्यू फोकल लेंथ का। तो अपने को क्वेश्चन में म्यू निकालने के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे 2 है इस वाले मीडियम में, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहां से म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। म्यू ऑफ एनी मीडियम इज बेसिकली speed of light in vacuum, which is 3 × 10⁸ meter per second upon speed of light in that medium, which is here in this case is 2 × 10⁸। यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 3/2 आएगा। इस 3/2 को हम यहाँ पुट कर लेंगे। इसके अलावा अपने को बस r की वैल्यू चाहिए। अगर अपने को r की वैल्यू मिल गई तो अपना काम हो जाएगा। तो इस कर्व सरफेस का r का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर लेते हैं। दिस इज हाफ ऑफ डायमीटर विच इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3, दिस इज r, this is t thickness at center and this one will be r minus t। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो अपने को मिलेगा r स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ी सा यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, r स्क्वायर इक्वल्स टू r माइनस t होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आप देख सकते हो पाइथागोरस लगाया इस वाले ट्राइंगल में। अब इसको एक्सपेंड करें तो वी विल हैव r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस 2rt प्लस 3 स्क्वायर। देखो जो ये t जो है वो mm में है तो वो बहुत छोटी टर्म हो जाएगी इन बाकी टर्म्स के सामने। t स्क्वायर की टर्म को अगर देखें तो इसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 इनके सामने, इनके रेस्पेक्ट। ये r स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा तो अपने को यहाँ से r की वैल्यू मिलेगी। वो क्या मिल रही है चेक करो। अगर यहाँ पे हम r की वैल्यू देखें तो दिस विल बी इक्वल टू r की वैल्यू अगर चेक करें ये किसके बराबर आ रहा है। सो दिस इज r की वैल्यू इज 3 स्क्वायर अपॉन 2t। आप देख सकते हो जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 स्क्वायर अपॉन 2t। अब इस r की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लें 3 स्क्वायर अपॉन 2t, और t की वैल्यू ध्यान रखना आप, ये mm में वैल्यूज दी हुई है, सबको ऐसा यूनिट में पुट कर लो। तो फोकल लेंथ यहाँ से आपको मिलेगा 0.3 मीटर विच इज 30 सेंटीमीटर एंड इट मैचेस विथ ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में पहले भी आ चुका है और ये क्वेश्चन में तो एक तरह से मानूंगा कि रिपीट हुआ है। और इसमें क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है तो इसको हम मॉडरेट टू टफ वाली कैटेगरी में पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अपने को प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक बार पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ा और फिर r निकालने के बाद फिर लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ, तो इसमें 2 to 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। सो वी कैन पुट इट इन नियरली मॉडरेट कैटेगरी, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में अपने को बच्चों एक सर्किट दिखा रखी है और पूछ रखा है कि ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अगर देखें ध्यान से तो ये नॉट गेट है, यहाँ पे अपने पास a बार हो जाएगा और ये b का इनपुट अपने पास यहाँ पे b बार हो जाएगा। यहाँ पे पहुंचने पे ये a बार प्लस b बार होगा और उसका नॉट लेने पे वी विल हैव a बार प्लस b बार होल बार एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम से ये हो जाएगा a डॉट b के बराबर। अब यहाँ पे इनपुट a डॉट b है तो यहाँ पे अपने पास होगा a डॉट b प्लस a डॉट b विच इज a डॉट b और उसका नॉट लगाएं तो यहाँ पे हो जाएगा a डॉट b का बार। तो ये तो नैंड गेट है अपने पास, वी कैन सी a और b का आउटपुट अगर a डॉट b होल बार हो तो ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। सो करेक्ट आंसर विल बी नैंड गेट। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉजिक गेट्स चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 17. A boy is rolling a 0.5 kg ball on frictionless floor with speed of 20 meter per second. Okay.
ball gets deflected by an obstacle on the way. After deflection, it moves with 5% of its initial kinetic energy. We have to find the speed of ball now. Okay, तो पहले बॉल की स्पीड अपने को पता है, उसका मास पता है, तो वी कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी एज हाफ mv स्क्वायर. मास की वैल्यू 0.5 पुट करें और v की वैल्यू 20 पुट करें. फाइनली जो इसकी एनर्जी है वो इस इनिशियल एनर्जी का 5% है. इसका 5% देखें तो दिस इज द फाइनल एनर्जी, and this final energy can be written as half into mass into final speed का square. इसको बच्चों सॉल्व करें तो we will get v final nearly equal to 4.47 which matches with option number 2. बहुत आसान क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी लिखना आना चाहिए अपने को वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से. we must know how to write kinetic energy. That's it. That is the only requirement for this question. We will keep it in very easy category. Let's move on to the next question. Question number 18. Which level of single ionized carbon has same energy as ground state energy of hydrogen atom? Okay, तो कार्बन का किस एनर्जी स्टेट का एनर्जी हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट एनर्जी के इक्वल होगा? तो किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर हम लिखें एनर्जी ऑफ nth स्टेट तो वो होता है -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. और कार्बन अगर चाहते हैं तो z को हम 6 पुट कर लेंगे. इस एनर्जी को हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर करना है, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर करना है. और जो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और इसको z को हम 6 पुट करें बिकॉज ऑफ कार्बन तो n की वैल्यू भी अपने पास 6 के बराबर आ जाएगी विच मैचेस विथ ऑप्शन नंबर 2. तो ये मॉडर्न फिजिक्स बोर्ड मॉडल का बहुत ही इजी सा कैलकुलेशन वाला सवाल, बहुत सिंपल कैलकुलेशन. nth स्टेट की एनर्जी क्या होती है अपने को बस इतना पता होना चाहिए था. So we will put it in easy category. Let's move on to the next question. 19. टू आइडियल पॉलीटॉमिक गैस है जिसका टेम्परेचर T1 T2 है. इसको हमने मिक्स किया है. इनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F1 F2 है, मासेस M1 M2 है और नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो N1 और N2 है. अपने को फाइनल टेम्परेचर निकालना है इस मिक्सचर का एज्यूम करते हुए कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है. तो इसके लिए अपन अगर एनर्जी कंजर्व कर लें, टोटल इंटरनल एनर्जी इनिशियली और टोटल इंटरनल एनर्जी फाइनली लिखकर इक्वेट कर लें. तो लेट अस राइट इंटरनल एनर्जी इनिशियल. तो मोल्स को मैं N1 अपॉन एवोगैड्रो लिख लेता हूँ. N1 इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो से डिवाइड करने पे वो मोल्स बन गया. तो F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, R इज गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर T1. ये इनिशियल लिखा है मैंने इंटरनल एनर्जी फर्स्ट वाले गैस का. सेकेंड वाले गैस के लिए अगर लिखें तो मोल्स इज N2, here we will have N2, Na, F2 degree of freedom for second gas constant and temperature T2. फाइनली मिक्स करने के बाद टेम्परेचर T हो गया इंटायर सिस्टम का. तो अब जब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखूंगा तो F1 ही लिखूंगा फर्स्ट वाले गैस के लिए, मोल्स N1 ही लिखूंगा, गैस कांस्टेंट R लिखूंगा, बट टेम्परेचर को मैं T लिखूंगा. दिस इज द टेम्परेचर T वी रिक्वायर. सिमिलरली सेकेंड वाले गैस के लिए मैं अगर इंटरनल एनर्जी लिखूं तो N2 अपॉन एवोगैड्रो, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज F2, गैस कांस्टेंट R एंड टेम्परेचर इज T. बच्चों इसमें आप देखो तो ये Na वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये R वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी. Na एंड R विल गेट कैंसिल आउट एवरीवेयर. सो फाइनल टेम्परेचर T जो अपने को मिलेगा बच्चों वो अपने को मिलेगा N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 plus N2 F2 T2 upon, from here we have N1 F1 and N2 F2, N1 F1 plus N2 F2 which matches with option number 2. Again this is a very easy question, बहुत कोई calculation based नहीं था, सिर्फ internal energy लिखना आना होना चाहिए अपने को, that's it. So this question belongs to chapter KTG thermodynamics and we will put it in easy category. Let's move on to the next question. Question number 20. A current of 10 ampere exists in a wire of cross section area 5 mm square. तो वायर में अपने को करंट गिवन है क्वेश्चन में 10 एम्पियर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है. अपने को सवाल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ईच क्यूबिक मीटर अपने से पूछा गया है. तो चार्ज कैरियर डेंसिटी बेसिकली पूछी गई है अपने को. तो जो करंट का जो फॉर्मूला है NEAVD उसको अगर यूज कर लें, आई होप ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ करंट वाले चैप्टर में. इसमें अपने को I
का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 10 to the power -19। क्वेश्चन में ए भी मेंशन्ड है और वीडी ड्रिफ्ट स्पीड भी मेंशन्ड है। इन सारी वैल्यूज को पुट करें तो सीधा ही अपने को एन मिल जाएगा, और सारी वैल्यूज को एसआई यूनिट पे पुट करने के बाद इस एन की जो वैल्यू अपने को मिलेगी दैट विल बी नियरली 625 into 10 to the power 25 and it will match with option number 2। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, स्टिल वी विल पुट इट इन इजी कैटेगरी, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कमिंग टू द इंटीजर्स पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर VHF signal broadcasting, kilometer square of maximum service area will, okay, so we have to find out the area which will be serviced through an antenna tower जिसकी हाइट अपने को 30 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, और ये ग्राउंड पे हमने लगा रखा है जिसमें अर्थ का रेडियस अपने को 6400 किलोमीटर लेना है और पाई की वैल्यू को 3.14। तो बच्चों सिग्नल का जो रेंज होता है वो हमने पढ़ रखा है कि अगर ये h हाइट का एंटीना है, अर्थ रेडियस अगर r है, तो द रेंज इट विल कवर, लेट अस कॉल इट d, तो इस d की वैल्यू होती है √2r/h। r इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड h इज हाइट ऑफ एंटीना। और ये कितना एरिया कवर करेगा, उस एरिया को निकालने के लिए हम d रेडियस की सर्कल का एरिया निकाल देते हैं, तो एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई d स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें तो इसका वैल्यू नियरली अपने को मिलेगा 1206 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ सकता है अपने को, रेडियस को किलोमीटर में पुट करना है 6400, हाइट मीटर्स में दिया हुआ है तो उसके यूनिट्स का ध्यान रखें, एंड देन एरिया निकालना है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है बट स्टिल बहुत इजी सा कंसेप्ट है, तो विल पुट इट इन इजी कैटेगरी, क्वेश्चन फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. The angular speed of truck wheel is increased from 900 rpm to 2460 rpm in 26 seconds. Okay. Number of revolution by truck engine during this time. तो अपने को number of revolutions निकालना है। देखो बच्चों, हम यहाँ पे average velocity का concept use कर लें तो हम बोल सकते हैं कि angular displacement theta can be written as average angular velocity into time। और यहाँ पे अगर हम अल्फा कांस्टेंट मान लें, एज्यूम कर लेते हैं अल्फा कांस्टेंट, तो ओमेगा एवरेज को आई कैन राइट एज ω1 प्लस ω2/2 इनटू टाइम t। टाइम अपने को क्वेश्चन में मेंशन है 26 सेकंड्स, तो इसको 26 सेकंड्स पुट कर लें, और ω1 ω2 आरपीएम में है, नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट, तो यहाँ डिवाइड बाय 60 भी कर लें वैल्यूज पुट करने के बाद। यहाँ वैल्यूज पुट करने के बाद 900 प्लस 2460 अपॉन 2 इंटू 60 करें। देखो बच्चों, ये जो थीटा मिलेगा ये आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ही मिलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ω1 और ω2 अपने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड के हिसाब से पुट किया है। तो यहाँ पे t को 26 पुट करें और ये जो आंसर मिलेगा वो सीधा ही अपने को नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मिलेंगे, विच विल कम आउट टू बी 728 आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, थोड़ा सा एंगुलर काइनेमेटिक्स का यूज था इसमें, सो वी विल पुट इट इन इजी कैटेगरी। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। Now, equivalent resistance of series combination of two resistor is S. So S can be written as series combination of two resistors. Let us call them R1, R2. So we have S equals to R1 plus R2. Now, when they are connected in parallel, equivalent resistance is P. So P is their parallel combination. So we can write it as R1, R2 upon R1 plus R2. Now, it's given in the question that S is equals to NP. So we can write S, which is R1 plus R2 equal to N times P, and P we have R1 R2 upon R1 plus R2. R1 R2 upon R1 plus R2. Now from here we have R1 plus R2 whole square upon R1 R2 equal to N. And we have to calculate minimum value of n. We can calculate minimum value of n by applying AM greater than GM. Arithmetic mean is more than geometric mean for R1 and R2. So here by applying that we will have R1 plus R2 by 2. Arithmetic mean is greater than equal to R1 R2 root over, which is geometric mean. So not solving this, you will get R1
plus R2 whole square upon R1 R2 is greater than equal to 4. So this value have minimum value equal to 4 and this is same as n. So minimum value of n will be 4, which is our required answer. So this question involves a bit amount of calculations. So we will put it in moderate category, chapter current and electricity. Let's come to question number 4 of integers. In this question 4 identical rectangular plates are shown. अपने पास 4 rectangular plates हैं, उनका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो वी कैन फाइंड आउट इट्स एरिया इफ रिक्वायर्ड. और इस तरह से अरेंज्ड है, अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और सी के बीच में. तो इसी सर्किट को मैं रीड्रॉ कर लूँ, ए और पी, ये ए पॉइंट है, तो वी हैव वन कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, लेट अस कॉल इट सी. सी इज हियर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. ओके, और बी and D points are same, they are connected. So B and C, we have one capacitance between B and C, and between C and D, and C and D. So D is same as B, so we have one more capacitance over here. तो इसका capacitance C मान लेते हैं, इसका भी C, क्योंकि distances same है, D, 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 plate areas भी same है, तो तीनों के capacitance same हो जाएंगे. इनका series, इनका parallel combination 2C मिलेगा, और 2C और C का series combination अपने को 2C/3 मिल जाएगा. तो दिस इज द C इक्विवेलेंट. अब यहाँ पे इसको A और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में अगर पुट करें तो वी हैव C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. यहाँ पे एरिया पुट कर लेते हैं प्लेट का, लेंथ एंड विड्थ अपने को पता है, तो एरिया पुट करें तो दिस वी विल गेट एज 2 एप्सिलॉन नॉट बाय D. सो द वैल्यू ऑफ X विल बी 2. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. सो दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. थोड़ा सा अपने को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कैपेसिटर का. सो विल पुट इट इन इजी कैटेगरी, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू कैपेसिटर्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. रेडियस इन किलोमीटर्स टू विच प्रेजेंट रेडियस ऑफ अर्थ टू बी कंप्रेस्ड सो दैट एस्केप वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड टू 10 टाइम्स. तो अर्थ का रेडियस को कितना कंप्रेस कर दें, कंप्रेस करके कितना कर दें ताकि एस्केप वेलोसिटी जो प्रेजेंट है उसका 10 गुना हो जाए, 10 टाइम्स हो जाए. देखो बच्चों, किसी भी प्लैनेट के लिए एस्केप स्पीड जो होती है दैट इज 2 टाइम्स g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन इट्स रेडियस का रूट ओवर. अगर हम इसका 10 टाइम्स चाहते हैं, लेट अस से न्यू स्केप स्पीड बन गई 10 टाइम्स और रेडियस r डैश हो गया, तो आई कैन से कि जो न्यू स्केप स्पीड आएगी दैट इज 10 टाइम्स रूट ओवर ऑफ 2gm अपॉन r. ये नया स्केप स्पीड है और इसको मैं लिख सकता हूं 2gm अपॉन न्यू रेडियस के रूट के बराबर. अब इनमें अगर देखें अपन बच्चों तो ये gm वाली टर्म 2 वाली टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगी. यहां से अपने को नया रेडियस मिल जाएगा r डैश, और ये r डैश को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा पुराना रेडियस अपॉन 100. पुराना रेडियस 6400 किलोमीटर है, नाउ इट इज 64 किलोमीटर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 100, which is our required answer. So again बच्चों, ग्रेविटेशन का बहुत ही सिंपल सा सवाल, अपने को बस स्केप स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए था और ये सवाल हम क्रैक कर सकते थे. तो we will put it in easy category. Let's come to question number 6. Consider two identical springs, each of spring constant K and negligible mass compared to mass M. So we have two springs, both of them can be considered as massless because their mass are very less, and both have spring constant K, they are identical. In figure 1 we have been shown only single spring and time period for this system is Ta, and in figure 2 series combination of two identical springs have been shown and time period in this case is Tb, and we need to find out the ratio Tb is to Ta. So let us first find K equivalent in both the cases. Here we have single spring, so K equivalent will be K. Here we have combination, series combination of two springs, so series combination of K and K will result into K by 2. So here K effective is K by 2. We know how to write time period for spring mass system. Time period is written as 2 pi root over of m by K. M and 2 pi will be same in both the cases. So if we take ratio, what we will have, Tb upon Ta we have to find out. So Tb we will put K as K by 2 here, and for Ta we will put K as K.
Now solving this, we will get result as root 2. Now comparing with the result given in question root x, we will have value of x equal to 2. So again this question is very easy, very small amount of manipulation and formula was involved. Question belonging to SHM, we will put it in easy category. Let's move on to the next question. Question number 7. In following bodies, ring, disc, solid cylinder or solid sphere of mass m and radius r, all have same mass m and all have same radius r, they are allowed to roll down without slipping simultaneously from top of the inclined plane. तो सबको हमने एक साथ छोड़ा यहाँ से इंक्लाइन प्लेन के टॉप से, तो कौन सबसे पहले बॉटम पे पहुंचेगा ये अपने से पूछा गया आउट ऑफ दीज फोर बॉडीज. So let's first calculate the acceleration of any random body, taking its mass as m, radius as r and moment of inertia as I. We know the accelerating force here is mg sin theta, and friction will be acting here. We will have normal here and mg cos theta in downward direction. Now writing equations of dynamics, we have mg sin theta minus friction is equals to MACM. This is translation motion of center of mass. Now writing equation for rotational motion about center of mass, we have torque of friction. So Fr equals to I alpha, I about center of mass into alpha. And for pure rolling, let's apply A equals to alpha r. Now students, solving these three equations, we will get ACM equal to G sin theta upon 1 plus I upon mr square, where I is moment of inertia. Now if we compare these four bodies, we will find solid sphere has minimum moment of inertia I, so acceleration will be maximum for solid sphere, and as acceleration is maximum for solid sphere, we can calculate time like this: half at square is equals to s. Initially it was released from rest, so the one having the maximum acceleration will be taking least time to reach the bottom of the incline. So here solid sphere will have maximum acceleration and its time to reach the bottom will be minimum. So this question was based on rigid body dynamics, concept of CTRM and pure rolling. So we can put it in moderate category. Now coming to question number 8, a parallel plate capacitor whose capacitance is 14 picofarad is charged by a battery to potential difference of 12 volt between its plates. Okay, so हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पहली लाइन को पढ़ के तो ये समझ में आता है कि ये कैपेसिटर है जिसको बैटरी से कनेक्ट किया हमने. इसका कैपेसिटेंस अपने को पता है, वो है 14 पिकोफैराड और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है EMF. इसे हमने चार्ज किया इसको. इसकी एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं. स्टार्टिंग में अगर इसकी एनर्जी निकालें तो q स्क्वायर बाई 2c से q विल बी cv का स्क्वायर अपॉन 2c. इससे अपन एनर्जी भी निकाल सकते हैं. अब बाद में हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है. सो वी आर इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक इन इट. और अपने से पूछा गया है कि जो प्लेट है, ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट कितने एनर्जी से ऑसिलेट करेगा. तो ये जब पूरा इंसर्ट हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे अंदर, तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और वही एनर्जी हम ऑसिलेशन की एनर्जी मान रहे हैं. उस एनर्जी को निकाला जा सकता है इस तरीके से कि पहले डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के पहले जो एनर्जी थी वो लिख लें, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो लिख लें, उनका डिफरेंस ले लें, दैट विल बी द के मैक्स फॉर द डाइलेक्ट्रिक. तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाइनली चार्ज कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमने प्लेट्स में से बैटरी को हटा दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है. तो फाइनल एनर्जी जो लिखूंगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वो मैं ऐसे लिखूंगा q स्क्वायर अपॉन 2c फाइनल c डैश. और ये फाइनल जो c है वो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद का है और वो k टाइम्स हो चुका होगा. k की वैल्यू 7 है. आप देख सकते हैं बच्चों, जो फाइनल एनर्जी है, दिस एनर्जी इज एक्चुअली इनिशियल एनर्जी अपॉन 7. इनिशियल एनर्जी आप यहां से निकाल सकते हैं. यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें और अपन फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस लें. इफ वी टेक डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल एनर्जी, mod of it, we will get result as 864 picojoule, which is our required answer. So this calculation was a bit based on calculations. अपने को
कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए थी, जैसे बैटरी को हटा करके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, एनर्जी इनिशियल फाइनल उनका डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख करके। तो इसको मैं, और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी क्योंकि इन्वॉल्व है, तो इसको मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। एंड चैप्टर इज कैपेसिटेंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में अपने पास 2 ब्लॉक्स है। ऊपर वाले ब्लॉक का मास 0.5 kg दिया हुआ है एंड नीचे वाले का 4.5 kg। इस तरह से फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ है, तो ये सरफेस स्मूथ है अपने पास। और अपने को पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना फोर्स अपन लगा सकते हैं लार्जर ब्लॉक पे, ताकि दोनों के बीच स्लिपिंग ना हो, दोनों साथ साथ चलें। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट अपने को 3/7 दिया हुआ है। देखो बच्चों, जब यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगा रहे होंगे अपन इनको मूव कराने के लिए, तो इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा उस मोमेंट पे। अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक को देखें तो उस पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब आएगा जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा आगे की तरफ। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को मैं म्यू इंटू एम जी बोल सकता हूँ, नॉर्मल की वैल्यू एम जी के बराबर है। और ए मैक्स जो आएगा वो पॉसिबल है, ए मैक्स इसके लिए म्यू जी, एम से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी पॉसिबल है। जब हम मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तो ये पूरा सिस्टम एक कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा होगा और उस वक्त इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा जो कि म्यू जी के बराबर है। अब मैं इस फोर्स को निकालने के लिए पूरे सिस्टम पे न्यूटन्स लॉ लगा लेता हूं। न्यूटन्स लॉ लगाऊं तो वी विल हैव F इक्वल्स टू टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A। कैपिटल M प्लस स्मॉल m करें तो ये 5 kg आता है और A की वैल्यू इज म्यू जी। G की वैल्यू अपने को 9.8 लेना है। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 3/7। इसकी वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें तो नियरली वी गेट आंसर इक्वल टू 21 न्यूटन, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो इसमें कैलकुलेशन एज सच बहुत कोई टफ नहीं थी, सिंपल 2 ब्लॉक सिस्टम पे सवाल था फ्रिक्शन चैप्टर का, तो वी कैन पुट इट इन इजी टू मॉडरेट कैटेगरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If 2.5 into 10 to the power minus 6 Newton average force is exerted by light wave on a non-reflecting surface of 30 centimeter square area during 40 minutes of time span. So basically अपने पास एक सरफेस एरिया है जिसका एरिया अपने को मेंशन्ड है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम स्पैन मेंशन्ड है 30 मिनट्स। तो ये एरिया जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड टाइम स्पैन इज 40 मिनट्स, 40 मिनट्स टाइम स्पैन मेंशन्ड है। इस पे ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है, इसको बेसिकली एब्जॉर्बिंग मान सकते हैं अपन, और कुछ इंसिडेंट रेज इस पे ऐसे आ रही है। अपने को बताना है इसका एनर्जी फ्लक्स, दैट इज इंटेंसिटी के बारे में बात करनी है। इस पे एवरेज फोर्स क्या है वो अपने को दिया हुआ है। देखो बच्चों, एवरेज फोर्स हम डायरेक्ट लिखना जानते हैं रेडिएशन प्रेशर की मदद से। जो एवरेज फोर्स आता है दैट इज इंटेंसिटी इनटू एरिया बाय सी। आई होप ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको पता होगा। यहाँ पे हमने को इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और जो इन्फॉर्मेशन अपने पास है वो फोर्स की वैल्यू, एरिया, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सब कुछ ऐसा यूनिट में आप पुट करें, इसको 3 इंटू 10 पावर 8 पुट करें। एरिया आपको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें और फोर्स न्यूटन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी, एरिया को, क्योंकि हमें इंटेंसिटी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही पूछा गया तो आप यहाँ पे एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहने दें, 30 ही पुट करें, डायरेक्ट इसकी वैल्यू है ना। तो इससे जो वैल्यू अपने को इंटेंसिटी की मिलती है दैट इज नियरली 25, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसमें कैलकुलेशन भी ऐसे बहुत टफ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सो वी कैन पुट इट इन इजी कैटेगरी and the topic is radiation pressure from modern physics. So students, this was discussion of morning shift paper 17th March of JEE Mains 2021. I wish you all the best for your results.